It's 19 hours. Good evening, sir. Good evening, Abhinav. सर अभी कनेक्ट होता है, नेटवर्क इशू है सर। क्या Good क्या? evening, sir. Good evening, ma'am. Okay, so let's start. Yes, sir. Okay, so okay, where has he gone? Wait, I don't know. Abhinav has left. Okay. Okay, sir. Sir, do you know the meaning STICH? S T TICH? S T I C H S T I T C H Yes, sir. stitch. No, it means the see, I know it. But 2-3 days before I find the word uh, stitch, and today I again finding this word because I forget to the meaning why I write stitch here. Then the meaning is not suitable for the line. I write this word in a incident of the day कि लास्ट में हम लोग इस behavior पे हंस पड़े. The word is behavior, and I was finding the synonyms of behavior, but because I don't want to write the same word again and again, that time I got stitch, but now when I searching the words again, stitch, this meaning is not suitable for the line. So basically, S T I C H. I also don't know. It means it is a first, na? S T I C H. ऐसा कोई शब्द है? I don't know. It means you are right. Google is not giving the right word. It means that that word is not correct. You have to come out of Yes, Google. You have to come out of Google and you have to take help of dictionary. Till the time you are not coming to dictionary, Yes, sir, yes. you will be lost only. No, sir. Very near. I will bring the dictionary from the village. Okay, fine. So, welcome to the 6th class of Juvenglish, our spoken English course. So, before we start, Yes, we will recap what we have done in the last class. We have discussed phrases. We have, I have sent you a Yes, sir. video on communication. 5 golden rules as it Yes, is, we sir. have to follow every day. Verb forms, pronunciation, dictation, and we did one exercise E to E. E2E. Fine. Now. From today, we will Yes, start sir. something which is a very serious topic in grammar, tenses. Yes, sir. And first, let me write all the things which I want to show you. 1 minute. Okay. So you have 3 types of tenses: present, past, and future. Okay. And in all these Yes, sir. Future. three parts of tenses, you have 4 parts of them: 4 types. simple, continuous, perfect, and perfect continuous. One more name of simple is indefinite. One more name for continuous is Yes. imperfect. And sometimes we also call it present progressive. So present continuous, present Oh. imperfect, and present progressive. All 3 are same. Right? Present perfect and present perfect continuous. This third name Hmm. I heard first time. Present progressive. Okay, so now we'll try to understand in which scenario we have to use simple present,
in which scenario present continuous, when present perfect, and when present perfect continuous. So whenever we will talk about routine or habit, जब भी हम बात करेंगे अपने दिनचर्या की और अपने हैबिट्स की, उसको बताने के लिए we will use simple present tense, present indefinite tense. मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता हूं. मैं हर दिन 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूं. मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूं. सो या तो ये मेरी रूटीन का पार्ट है या ये मेरी हैबिट है. मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, ये मेरी हैबिट है, राइट? तो हैबिट्स के लिए और रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो आपको मालूम चल गया कि whenever you are telling someone about your routine, you will use simple present tense. राइट? उसके अलावा इसका हम और यूज कहीं भी, मतलब हमारे बेसिक जानने में हम नहीं करते. दूसरा हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, दैट आई विल यूज ओनली अगर कोई घटना वर्तमान में घट रही हो. यानी कोई मुझसे मिलने आया और मैं उस समय खाना खा रहा हूं, तो आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग. जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं उस समय हम लोग बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग. सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग. तो अगर वर्तमान में वो घटना चल रही है, घट रही है, तो हम उसको यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अगर जबकि हम बात कर रहे हैं जिस समय की, उसके थोड़ी देर पहले वो घटना घट चुकी, वो खत्म हो गई घटना, प्रेजेंट में ही, वर्तमान में ही थोड़ी देर पहले वो घटना घट चुकी है, तो हम उसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाई वी आर यूजिंग परफेक्ट? परफेक्ट मतलब खत्म हो गया, फिनिश्ड, परफेक्ट, इट्स ओवर. यस, डन, है ना? तो मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और पूछा कि तुमने खाना खा लिया? तो मैंने बोला कि यस, मैं खाना खा चुका हूं. यानी तुम्हारे आने से, तुम्हारे पूछने से कुछ देर पहले मैंने खाना खाना समाप्त कर लिया है. सो मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, उसने खा लिया है, वह चला गया है. ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं. एंड लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो घटना आज के दिन वर्तमान में शुरू होकर के, मतलब शुरू हुई थी पास्ट में, लेकिन अभी तक वो चलती चली आ रही है. मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूं. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, राइट? 2 हफ्ते से बारिश हो रही है. यानी कि शुरुआत तो हुई थी पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में भी उस काम का होना जारी है, होना जारी है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये चारों बड़े ही सिंपल हैं, और इसमें हमको समझने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर एंड हैज बीन, हैव बीन. ये 4 सेट हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के, which we use in making sentences in present tense. तो when we are talking about simple present tense, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तो we use, इसको हम बोलते हैं V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम सिर्फ लिखते हैं, अभिनव, आर यू लिसनिंग? यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर. ओके, ठीक है. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पीता हूं, तो आई के साथ में हम यूज करते हैं इट का. जो आई का प्लूरल है, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वी, वहां भी वी इट. जो सेकंड पर्सन है यू, उसमें भी हम यूज करते हैं वी1 का, ईट का. बट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट और जितने भी नाम हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं V5. यानी हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने V1 में एस या ईएस लगाया, दैट इज कॉल्ड V5, समझने के लिए. और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है दे के साथ भी हम V1 ही यूज करते हैं. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ V1, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5, एस या ईएस लगाने के. अब अगर हम यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, मैं
मैं नहीं खाता हूं, तो उसमें नॉट को लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट स्लीप। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगता ही नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन बनता नहीं है। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, तो वहां पर डू आ जाएगा। तो नॉट लगाना होगा तो डू आ जाएगा, क्वेश्चन बनाना होगा तो भी डू आ जाएगा। तो सेम सेम रूल है, जहां पर हमने V5 लगाया था थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां पे हम डज लगाते हैं, और बाकी जहां हमने V1 लगाया था वहां हम डू लगाते हैं। सो राम ईट्स, राम डजंट ईट। अब इसमें क्या होगा, जब डज लगाएंगे तो V5 विल चेंज टू V1। V1. Yes. क्या राम खाता है, डज राम ईट। Does run. क्योंकि डज लगा दिया है तो ईट्स का एस गायब हो जाएगा, डज राम ईट। सिंपल है। Yes. अब हम आते हैं अगर कंटिन्यूअस में, तो बड़ा इजी है। इज का यूज हम कहां करते हैं, इज का हम यूज करते हैं वापस थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट Singular. और सारे नाम के साथ में। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, और बाकी हम सब के साथ आर यूज करते हैं। Are useful. वी आर, यू आर, दे आर। आई के साथ एम, और ही शी इट और नाम के साथ इज। और इसका बड़ा सिंपल है, वर्ब में हमेशा आईएनजी लगा करके हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत इजी है इसमें आईएनजी लगाना है। ओके इसमें आपको सिर्फ एक ख्याल रखना है, विच वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है एंड उसके पहले वॉवेल है, लाइक रन, पुट, हिट, तो उसको जब हम चेंज करेंगे आईएनजी में लगाएंगे उसमें हम, तो कॉन्सोनेंट एक और ऐड हो जाएगा। रनिंग, RUNNING, पुटिंग, PUTTING। ठीक है, सिंपल सा एक और याद रखना है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आल्सो इज वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट में वापस वही है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, Have. राइट। और इसका जो सेंटेंस बनता है, आई हैव गॉन, आई हैव ईटन, ही हैज संग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। Yes. Sir. और वापस इसको अगर आपको निगेटिव करना होगा तो ही हैज नॉट, आई हैव नॉट, और क्वेश्चन बनाना होगा तो हैज हैव पहले आ जाएगा। हैज राम ईटन, क्या राम ने खा लिया है, क्या मैंने खा लिया है, हैव आई ईटन। और जो आपका कंटिन्यूअस में मैं बोलना भूल गया, इज एम आर है, उसके बाद में नॉट लग जाता है, इजंट, आरंट। और एम नॉट को हम बोलते हैं एंट। मैं आई विल टाइप एंड टेल यू, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, लेट मी टाइप फॉर यू। जो एम नॉट है इसको हम लिख सकते हैं AIN', एंट। Yes, sir. The first time I see this. हाँ, क्या तुम I'm पटना, seeing this first क्या time. तुम पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना, मैं पटना नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू पटना। तो आई एम नॉट बोलने की जगह पे शॉर्ट फॉर्म आई एंट गोइंग टू पटना। आप I हमेशा याद रखिए Yes. कि इंग्लिश में जहां भी पॉसिबल है वी गो फॉर कंट्रैक्शन, डजंट, डोंट, वोंट, आरंट, इजंट, राइट। तो जहां भी पॉसिबिलिटी Yes. है उसमें आपको उसको कॉन्ट्रैक्शन डाल करके एपोस्ट्रोफी का आपको यूज करना है, और ओ को आपको गायब कर देना है। फाइन। Yes. और आपका जो लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं 2 घंटे से खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। He has been sleeping since morning। अब यहां पर for और since समझना है, for और since। अगर टाइमलाइन क्लियर है, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं, तो हम लगाते हैं since। अगर टाइमलाइन क्लियर नहीं है, 2 घंटा, 2 हफ्ता, 2 दिन, तो लगाते हैं for। For. 9 बजे, राइट, सुबह से, मंगलवार से, Yes. तो यूज करेंगे since।
It has been raining since Tuesday. It has been raining since Tuesday. यानी कि मंगलवार से बारिश होती चली आ रही है. तो बिकॉज मंगलवार फिक्स है, सिंस लग गया, सिंस ट्यूसडे. लेकिन 4 दिनों से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 days. फाइन. तो आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा. इसमें अगर आपको नेगेटिव करना है तो आई हैव नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा. और अगर इसको बनाना होगा क्वेश्चन तो हैज और हैव चले जाएंगे पहले. हैज आई, सो मैं 2 घंटे से खाता आ रहा हूं. हैव आई बीन ईटिंग फॉर 2 hours. हैव चला गया पहले, बाकी आई बीन वैसे रह गया एंड सवाल बन गया हमारा. सो ये सारी कहानी है, बहुत ही सिंपल है. आप सब लोगों ने इसको पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं. 1 minute. लेकिन टेंस ऐसा होना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, खासकर जो लोग जो टीचर हैं या नहीं भी हैं, तो आपका टेंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. बिकॉज सी, टेंस इज द बैकबोन. तो कोई भी आपको कभी पूछे कि भाई बताओ मेरे को ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, कौन सा इसका स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, यू हैव टू वेरी क्विक. और अगर हम समझ के लेंगे तो बड़ा ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है. ओके, नाउ डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव. हमारे हम 3 तरह का पढ़ते हैं ना. एक हम पढ़ते हैं सपोज आई ईट, तो आई ईट हो गया, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव. सो डिक्लेरेटिव या असर्टिव का 2 पार्ट है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. आई ईट असर्टिव हो, आई डोंट ईट नेगेटिव हो गया. और क्वेश्चन बनाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है. सेंटेंस में यह समझना है आपको, सेंटेंस का हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अगर आंसर हाँ में है तो अफर्मेटिव, आंसर ना में है तो नेगेटिव. दोनों डिक्लेरेटिव या असर्टिव के पार्ट हैं. मैं इसको वापस लिख दूं. ये शायद आगे हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे भी, बट जब तक नहीं पढ़ते हैं तो आई विल टेल यू. सो असर्टिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव. ओके, और इसके आपके हो गए 2 पार्ट. कौन कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो अफर्मेटिव. क्या तुम खाते हो? हाँ मैं खाता हूं. यस आई ईट. मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट. तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया मैं खाता हूं, आई ईट. और नेगेटिव का हो गया आई डोंट ईट. तो इसमें हमको ये 3 तरह से सेंटेंसेस बनाना जानना होगा. सिंस फॉर, आई टोल्ड यू कि सिंस फॉर का क्या इस्तेमाल है. क्लियर ऑल ड्राइंग्स, इसको कट कीजिए. ओके, एंड लास्ट वन इज द फ्लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल आपका कोई भी सेंटेंस बनेगा उसका यही फ्लो रहने वाला है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट विल कम. सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू, एवरीवन इज हैविंग अ ग्रामर बुक एट होम. एक बार ग्रामर बुक को उठा करके प्लीज गो थ्रू प्रेजेंट टेंस, और इसकी रिकॉर्डिंग, इसका पीडीएफ आपके पास में आ जाएगा. प्लीज एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि सर ये वाला पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज लेट मी नो. एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठना चाहिए. उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फॉर्मेशन का रूल है, राइट. पहले क्या आता है फिर क्या आता है, एकदम बिल्कुल फटाफट दिमाग में. कोई आप सो रहे हो, कोई पूछे कि प्लीज टेल मी कि ये सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ. फाइन, दैट इज द क्लैरिटी वी नीड. सर. हाँ बताइए. सर. सर मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, प्लीज आप सुनिए. बोलिए. डिक्लेरेटिव का 2 पार्ट्स होता है, नेगेटिव और अफर्मेटिव. वेरी गुड. और उसको हम असर्टिव भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी. असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों सेम चीज हो गया. हाँ ओके. और ये उसके बगल में इंटरोगेटिव क्यों लिखा था सर? हाँ, वो सवाल पूछने के लिए. देखिए, असर्टिव का 2 पार्ट हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव. आई ईट, आई डोंट ईट. और इंट्रोगेटिव हो गया क्वेश्चन, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं. डू आई ईट, डोंट. तो सवाल बनाएंगे क्या तो मैं नहीं खाता, डू आई. हाँ, सवाल बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा,
और हम हाँ में या ना में जवाब देंगे, अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो वो उसको हम ऐसे बना देंगे आपको, ठीक है। नाउ Okay, sir. वर्ब फॉर्म्स में व्हाट वी हैव डन स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्मेल वी हैव डिस्कस्ड, स्पेंड एंड विन, वन। अब आज का जो आपका है, आपको दिख रहा होगा, यू हैव अगेन 5 वर्ब फॉर्म्स। चलिए वन बाय वन, राधा मैम पहला वर्ब Yes, sir. बताइए, जानती हैं आप इस वर्ब को? Wind. हम्म, Yes, sir. हाँ, क्या होता है इसका मतलब? लेकिन विंड का V2 V3 मुझे नहीं आता है सर। नहीं आता है, ठीक है। अभिनव, डू यू नो? What sir? डू यू नो WIND? सर विंड का विंड ही होगा सर। विंड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। हवा, हवा। हम बात कर रहे हैं वर्ब फॉर्म्स की। बहता हुआ। हवा, बहती हवा। मेरे भाई अभिनव, हवा एक नाउन है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वर्ब फॉर्म्स, हम नाउन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं इंग्लिश में। जब हम बात कर रहे हैं वर्ब फॉर्म्स की, देन टेल मी कि विंड का वर्ब फॉर्म में क्या होता है इस्तेमाल? नहीं मालूम है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत जगह जहां पर पंखा रिपेयर होता है या जहां पर कुछ मशीन Yes, sir. रिपेयरिंग होती है, वहां पर लिखा रहता है हमारे यहाँ वाइंडिंग की जाती है Yes, sir. है ना? तो WIND इज वाइंड। वाइंड का मतलब होता है किसी Oh. चीज के चारों तरफ तार को लपेटना, वाइंड। One. Yes, sir. ओके, तो ये वाइंड है, वाइंड, वाउंड, वाउंड, ठीक है। Yes, sir. ओके, Today दूसरा, I know. हाँ, दूसरा क्या होता है, अगर कोई किसी ऊंचाई से गिर करके, मतलब गिर करके कोई अगर बेहोश होता है, तो उसको हम बोलते हैं WIND, विंड, विंडेड, विंडेड। फाइन, तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल हो गया। एक हो गया आपका क्या, वाइंड, वाउंड, वाउंड मतलब चार लपेटना, चार लपेटना, और अगर गिर करके बेहोश होना हम यूज कर रहे हैं तो विंड, विंडेड, विंडेड। The bird winded after falling from tree. The bird winded after falling from tree. चिड़िया पेड़ से गिर के बेहोश हो गई। फाइन। दूसरा हमारा वीप है, आपको मालूम है वीप का मतलब क्या होता है? Yes, sir. रोना। रोना, वीप, वेप, वेप। Who will tell me about Yes, ring? yes. WRING, ring। इसका मतलब क्या होता है? No, sir, I don't know. अभिनव, एनी आइडिया? ओके, सो रिंग, रंग, रंग। रिंग का मतलब होता है क्या? देखिए मेरा एक्शन, निचोड़ना। कपड़े को निचोड़ना, यस, निचोड़ना। निचोड़ना, रिंग। सो मैं आपसे पूछूंगा कि डिड यू रिंग द क्लोथ्स? यस, आई हैव रंग माय क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़े को निचोड़ दिया है। रिंग, निचोड़ना। रंग, रंग, Yes, sir. निचोड़ना। अगला क्या है हमारा, अराइज। अराइज का मतलब क्या होता है भाई? प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होना, सामने आना, सामने आना, राइज, सामने आना। सन राइज। हाँ हाँ, नहीं वो अलग है, वो RISE राइज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, RISE, ये अराइज है, ये लगा हुआ है उसके आगे। अराइज का मतलब होता है, Arise. अराइज का मतलब होता है जनरली जो हम इसको यूज करते हैं, अराइज एंड अवेक। स्वामी विवेकानंद का बड़ा फेमस लाइन है, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल। जगो, जगो, या जगो मतलब आंख मत खोलो, मन से जगो। होता है ना कि हमको अचानक से हम सोचते हैं कि अरे यार मैंने अपनी जिंदगी तो बेकार कर दी, कुछ सीखा ही नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। अराइज, जगे हम आज। समझ में आ गया आपको? अराइज का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें कुछ अपना कर्तव्य बोध होता है, कुछ ज्ञान दिमाग में ज्ञान आता है कि अच्छा अच्छा ओके मुझे ये काम करना था,
मैंने ये काम अभी तक नहीं किया। अराइज, अराइज, अरोज, अराइजन। और वो जगन जो उगने का जो है उगना, वो RISE, राइज। द सन राइजेस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बीट। Yes. बीट का मतलब Yes, क्या sir. होता है? हराना, किसी को पीछे छोड़ना, हराना। बीट का दो मतलब हो सकता है। अगर आपने खेल में हरा दिया तो भी बोलते हैं इंडिया, इंडिया बीट पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। और किसी को अगर हम मारते हैं तो वहां भी हम बीट यूज करते हैं। Beat का use करते हैं. Yes, sir. बीट मी। तो बीट, बीट, बीटन। V1 V2 सेम है और V3 में EN लग जाता है। राइट, क्लियर? वर्ब फॉर्म्स क्लियर है? नाउ Yes, कमिंग sir. टू, अब ये सारे वर्ब फॉर्म्स आपके तभी होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू यूज देम 4-5 टाइम्स, आइदर इन राइटिंग और इन कन्वर्सेशन। बोलने में यूज कीजिए, खोज खोज करके शब्द निकाल निकाल के यूज कीजिए। जितना आप इसमें घुसेंगे, आप याद करेंगे, उतना ही आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। नाउ कमिंग टू प्रोनाउंसिएशन, हमारे पास आज वापस 6 वर्ड हैं। राधा मैम, फर्स्ट वन क्या बोलेंगे उसको? Booty. ओके, अभिनव नेक्स्ट। ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट राधा मैम। Brochure. नेक्स्ट अभिनव। बुफेट, नेक्स्ट, Business. नेक्स्ट। कैच, अब देखते हैं इसका क्या है सही। बुटीक, बुटीक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुटीक? जहाँ पे बुटीक मीन्स जहाँ पे गर्ल्स का जो डिजाइनर कपड़े बनते हैं सब बुटीक। जहां पर डिजाइनर कपड़े बनते हैं, यानी कि एक जो डिजाइन बना उस डिजाइन को रिपीट नहीं किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बुटीक। बुटीक का मतलब ही होता है, वहां पे औरतें क्यों जाती हैं? बिकॉज जैसा मेरा ड्रेस बनेगा अब दोबारा उसकी कॉपी नहीं होगी। नहीं। So we call it boutique, boutique shop. Now this one is breakfast. Fast नहीं है, breakfast, breakfast. ठीक है, बोलने में breakfast. Third one is brochure, brochure. Brochure का मतलब क्या होता है? पिक्चर, पिक्चर बुक, पिक्चर बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोशर का जो सही मतलब है वो ये है कि आप किसी स्कूल में गए या कॉलेज में गए या किसी दुकान पे गए, आपने बोला कि प्लीज शो मी योर ब्रोशर, यानी कि जो आपके दुकान में जो चीजें हैं, जो आपके स्कूल में जो चीजें हैं, उसका एक मुझे समरी दीजिए, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो कोई भी संस्थान अपने सामान के बारे में जो एक पुस्तिका छापती है जिसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोशर, ब्रोशर। एंड दिस इज बुफे। बुफे कैसा हो गया? हमने पढ़ा था आला कार्ट अपने पहले क्लास में। आला कार्ट का मतलब Yes, sir. ऑर्डर Yes, करके मेनू कार्ड से और वेटर सर्व करेगा तब खाना। खाना नहीं। बट अगर आपने प्लेट लेके खुद से Yes. आपने सर्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड बुफे। जितने भी शादी फंक्शन, मैरिज फंक्शन में आजकल क्या होता है, हम बुफे काउंटर पे जाके खाना खाते हैं। खुद से प्लेट लीजिए, खाना परोसिए और खाना खाइए। नाउ द वन इज बिजनेस, बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज कैश। कैश क्या होता है एनीवन? Yes. पैसा, क्या होता है भाई? इन नोट, नॉट ऑनलाइन, नो नो नो, नोट का होता हैंड बाय है हैंड मनी, हैंड बाय हैंड मनी। हैंड। CASH. पैसे के लिए CASH यूज करते हैं, ये CACHE है। अगर मोबाइल पे या कंप्यूटर पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती हैं। तो आपको आता है कि प्लीज क्लियर द कैश, यानी अपने लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, मोबाइल का जो डुप्लीकेट फाइल्स है उसको डिलीट कीजिए, उसको हटाइए। प्लीज क्लियर द कैश। Oh. Duplicate files found on desktop, laptop and mobile phones, that is called cache. Fine. The spoken English video I will Yes, send you, not to worry about this. आज का वीडियो बड़ा अच्छा है, I will send you. Now coming to the next one. Okay, Sir, all videos are good. all videos are good. Fine. So keep implementing जितना आप Oh, उसको, I enjoy a lot. very good, very good. So now I want अच्छा इसको हम एक काम करते हैं,
दिस क्लास वर्क आई विल पार्क बिकॉज हमारे पास लास्ट का 10 मिनट्स है. टेंस में हम काफी समय हमारा खा गए. अगर हमारे पास मौका मिलेगा तो आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन प्रेजेंट टेंस. अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट यू कि कल आप जो है समझ करके मुझे कॉल कीजिए एंड ऑन फोन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट प्रेजेंट टेंस. ठीक है, समझ करके कल आप मेरे को फोन पे समझाइए व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. हाँ, टाइम बात कर लीजिएगा. 4 p.m. ड्रॉप अ मैसेज, आई विल टेल यू द टाइम एंड देन विल टॉक. ठीक है, सो टुमारो एक्सप्लेन मी प्रेजेंट टेंस, बोथ ऑफ यू. ओके, नाउ कमिंग टू डिक्टेशन, प्लीज बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. The first is disciple. Disciple. Disciple का मतलब होता है चेला, शिष्य. Disciple. Disciple. Second word is prominent. Prominent. Please keep this book at a prominent place. Please keep this book at a prominent place. यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे कि सबकी नजर पड़ सके. Prominent. खास. Prominent. So disciple, prominent, and third one is adequate. Adequate. Adequate का मतलब पर्याप्त. I have got adequate money to travel to Patna. पटना ट्रैवल करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है. Adequate. Adequate के बाद चौथा हमारा है tussle. Tussle आपने सुना होगा, दो व्यक्तियों के बीच में tussle, द्वंद्व है ना, आपस में कुछ मारपीट, कुछ डिफरेंसेस, that is called tussle. So there is a tussle going on between India and China. Tussle. पांचवा है आपका inaugurate. Inaugurate मतलब inaugurate, उद्घाटन. उद्घाटन करना. उद्घाटन. उद्घाटन करना. उद्घाटन is inauguration. उद्घाटन करना inaugurate. उद्घाटन inauguration. छठा वर्ड है आपके लिए ग्लटन. ग्लटन मतलब पेटू, भूख से ज्यादा खाने वाला. ग्लटन. Do not behave like a glutton. Eat in a controlled way. Do not behave like a glutton. Glutton. Next है calamity. Calamity is a very common word. प्राकृतिक आपदा को हम बोलते हैं calamity. Calamity जैसे कि हमारी सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया. This is called calamity. प्राकृतिक आपदा. Next one is spendthrift. Spendthrift मतलब वापस, हमने एक वर्ड देखा था extravagant. Extravagant का भाई है spendthrift, खर्चीला. He is spendthrift. वो बहुत ही खर्चीला है. Spendthrift. And ninth one is after the spendthrift. After the spend, what is the sound? Spendthrift. Spendthrift. Okay, मैं आपको साउंड बता रहा हूं इसलिए बिकॉज आपको साउंड सुन करके पकड़ना है. Spendthrift. And the ninth one is prejudice. Prejudice. Prejudice यानी पक्षपात. He always does prejudice. वो हमेशा पक्षपात करता है. Prejudice. And the last one is hypocrisy. Hypocrisy का मतलब होता है पाखंड. Hypocrisy. और hypocrisy से बना है hypocrite. Hypocrisy मतलब पाखंड. Hypocrisy. I do not believe in hypocrisy. मैं पाखंड पे विश्वास नहीं करता हूं. I do not believe in hypocrisy. So आपके 10 वर्ड हो चुके हैं. Let me share and show you. Okay, share screen, and this is dictation. Okay, now you can see disciple,
Then you have prominent, adequate, tussle, inaugurate, glutton, calamity, spendthrift, prejudice, and hypocrisy. Please tell me your score. इनोग्रेट गलत है, ग्लटन सही है, क्लैमिटी भी सही है, 1 2 3 friendship is also right, 5 Sir, only 4 marks. Only 4 marks, okay. So 5 sir. कितना 5 है, okay, very good. 4 5 में कोई दिक्कत नहीं है. Life is beautiful. I will send you the video. आज का भी वीडियो बड़ा अच्छा है. I will send you this one. Okay, now I will say start, and you have to write words starting with T and ending with T. T से शुरू, T से खत्म, and your time starts now. Starting with T and ending with T. Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Time up. चलिए, please read. Abhinav. Yes sir. Sir, first is ticket. Okay. Second is twist. Okay. Third is tonight. Okay. Fourth is treatment. Okay. Fifth is text. Okay. Sixth is tight. Okay. 7 is table. हाँ, टेबल कैसे होगा? टैबलेट होगा, टैबलेट. Yes sir, tablet. हाँ सर, टैबलेट नहीं लिखा सर, टेबल लिखिए. Okay, okay. फिर उसके बाद सर, उसके बाद ट्वीट. Very good. ट्विटर, ट्वीट. Very good. उसके बाद सर टोस्ट, टोस्ट. Okay, okay, great, great, great. उसके बाद सर एक TNT आता है सर, वो एक्सप्लोजन में आता है. TNT को हम नहीं लेंगे बिकॉज TNT शॉर्ट फॉर्म है, वो वर्ड नहीं है अपने आप में. ओके, ग्रेट ग्रेट. राधा मैम, कुछ नया वर्ड आपके पास? सर एक और है सर. सर एक और है सर, ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड. राधा मैम, एनी न्यू वर्ड? Sir, I write 5, but 1 is wrong. Okay, okay, great. So ये सारे. One is tomato, by it is wrong. Wrong. And I write dot, talent, trumpet, tent. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये सारे एक्सरसाइजेस जो हैं आपके माइंड को शार्प करने के लिए हैं. फाइन. तो आपका जो होमवर्क था लास्ट क्लास का, वो आपने मुझे डाल दिया शायद. अभिनव का तो आया है होमवर्क, और कल याद से टाइम निकाल करके विल डिस्कस द होमवर्क. ओके. एंड आज का जो होमवर्क है वो है डिफरेंट यूसेज ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस को ठीक से पढ़ के समझ करके कल मुझे समझाना है. राइट? ये आपका होमवर्क है, अपने आप बहुत बड़ा होमवर्क है. You have to explain me on phone about present tense. ठीक है? So please take time tomorrow and talk to me regarding your homework, and if you have any other confusion. Done? After sir, tomorrow after computer class I will call you. Okay, so please drop the message right now so that I can plan my day. Okay, sir. Done, Radha ma'am? अभी ही टाइम ले Yes, लीजिए sir. और कल फोन कर लीजिए कल. Right? So This- now for the homework, discussing for the about homework, simple for the present homework, tense. for the homework, all homeworks,
जो भी आपको लगता है पेंडिंग है, डिस्कस नहीं हुआ है, प्लीज टॉक टू मी टुमारो.